समूचे भारत से आज हमारे पास में मेहमान जुड़े हैं, देश के कोने कोने से कह सकते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी जगह रहकर बहुत कुछ किया है और उसी काम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सराहा है और उसी बारे में आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। और पता ये दर्शाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता को दर्शाती है, हमारी ये संस्कृति। See, Mann Ki Baat is one of a kind of a radio program which has never ever happened in the whole world. Globally, this is the first program जहाँ पे एक head of state direct अपने लोगों से बात कर रहा है, उनकी समाज में क्या वो योगदान दे रहे हैं, उनकी सराहना हो रही है। इससे क्या होता है, जो एक छोटा एक पॉकेट में लोग काम कर रहे हैं, जब उनको एक नेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिलती है तो वो एक हमारे सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। हमें लगता है जब वो एक छोटी सी पहल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इससे ये भी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की नज़र हम सब पे है, क्योंकि एक there's a reason कि उनको प्रधान सेवक कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ लोग जिनका प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया आज हमारे साथ हैं, जो अपनी कैपेसिटी में छोटा ही सही लेकिन बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आज वो हमारे साथ हैं। आइए स्वागत करते हैं के कृष्णा राजू, हु इज CEO ऑफ योर बैकर्स फाउंडेशन फ्रॉम पुदुचेरी। उनके साथ हैं पी लेलन, हु इज आल्सो MD ऑफ द सेम फाउंडेशन। साथ ही हमारे साथ हैं शर्मिला ओसवाल जी, यू आर द ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन मेंबर। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो मैम। And we cannot begin the show without telling that she is also known as Millet Women of India. Yes. So, K. Krishna Raju, we would like to start with you first. That we all have heard about your great initiative about cleaning oceans and how your small initiative is making a big difference. Please tell us how this journey started. Yeah. First of all, I would like to say Lord Shiva for giving this good opportunity. Actually, we are your backers. Yeah. So, you know what is the mean for your backers. We are always, backers for really who need help. Right. The people, we are giving our hand to everyone. See, always I believe only one thing. Actually, I don't know Hindi, but I will tell one thing. Karma pradhan vishwa racha rakha, jo jas kare, hu tas phal chaka. That's interesting. That means, I don't know Hindi actually. See, actually, I believe on this. So, always I'm following these lines. When we started our journey, we did not expect anything, any reward from anyone. Right. We did not think. Actually, Modi ji has recognized. Yes. So, they speak about it in Mann Ki Baat. Everybody will think why we are doing this like this work. Right. So, see, you need not to say Hindi or English, but your work is doing all the talking. So you're doing such great work that we're talking about it. So Lenin, we would like to know that what all measures are you applying in order to clean the ocean? Yeah, of course. That first of all, that I want to tell that we are everybody know that everybody thinking that we are cleaning and process wise we are doing the so many mission wise, that mechanical wise. So we are doing the fisheries man, we are doing that process because that locally we are serving that every childhood life we are seeing that a fisherman is suffering like anything. Yeah. So we are generating some work opportunity to them, and moreover the fishermen only know where is that plastic will be dumped in sea wise. We are not see that publicity wise somebody will doing that and all is not work. So see, everybody is using machines, but you're giving employment opportunity to the fishermen also. Yeah, of course. Okay. And moreover, after that, the Mann Ki Baat, that our CEO, the first of all, that CEO name will be from Mann Ki Baat wise the Modi one. After that, seriously, that is only a biggest surprise of very biggest surprise, because we didn't know that we are not that time we heard about. Somebody will be telling your organization name and your name telling from. Well, the however Modi. cliche does it sound, but I would definitely want to know your first reaction when you heard that you're on Mann Ki Baat. Yeah, of course. After that, we are seriously we are not able to understand. We are not believe also. First of all, how is it possible? True. Because we are doing very simple manner. We are not doing the exactly. We want to do the publicity that and all. We are not expecting, but we are doing some because we are always thinking our family is big, not for the Pondicherry, not for the Tamil Nadu, not for the India. So our family is very big. Until now, like how many people are associated with you?
So more than 200 peoples. Okay. Only for this process. Okay. Our organization network is, I think, probably that 1,000 peoples were working there. हाँ. So this process only we are working for the 200 Okay. peoples. नाइस तो शर्मिला जी आपसे जानना चाहेंगे मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया आपको खिताब दिया गया है। सबसे पहले मिलेट के बारे में ही हमारी आप व्यूअर्स को बताएं थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी, क्या होता है ये? मिलेट यह एक अंग्रेजी शब्द है, पर हमारे भारत के लिए यह सबसे पुराना अनाज है जिसे मोटा अनाज कहते हैं। हाँ. तो जैसे जवार, बाजरा, रागी, यह काफ़ी जो भारत का मतलब काफ़ी जितने भी लोग हैं ये इसे जानते हैं, पर इसके अलावा कुटकी, चेना, वरई, भगर, सामा, जैसे उपवास होते हैं तो सामा के चावल खाए जाते हैं। तो आज तक सब लोगों ने कि भाई ये परंपरा चल रही है, पर इसका साइंटिफिक वर्जन जब 2023 यह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बना, और जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया या यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन ने पूरे दुनिया को एक इंटरनेशनल ईयर बनाया, 72 कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट किया। तो ऐसी क्या वजह थी कि मिलेट या मोटा अनाज पूरी दुनिया, जैसे अमेरिका में इसे पशुओं का आहार माना जाता है, जिसे कहते हैं कि एनिमल फॉडर, बर्ड फॉडर, तो सडनली ऐसी क्या आग लग गई कि दुनिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, वेलनेस, फिटनेस, एवरीबडी आई मीन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मिलेट्स। तो सबसे बड़ी वजह ये रही है फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सरहद पे एक सिपाही जो लड़ता है वो देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है, पर सबसे बड़ी दूसरी सुरक्षा है वो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो भारत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है इस देश को और पूरी दुनिया को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स देके। राइट मैम, मिलेट जैसे आपने कहा पहले लोग को इसकी वैल्यू नहीं होती थी, अब जैसे जैसे बीमारियों से हम ग्रसित होते जाते हैं तो हमें ऑर्गेनिक खाने की अहमियत समझ आती है, क्योंकि कोई भी बीमारी तभी उपजती है जब आप सही पोषण, सही आहार नहीं ले रहे होते। पर मार्केट में इतना कुछ ऑर्गेनिक अवेलेबल होता है, अब क्या सही क्या गलत कैसे आप चुनें और उससे बच के आप क्या अपने आहार में शामिल करें जिससे आप इन बीमारियों से दूर रहें? आम जनता के हिसाब से तो मैं बताऊंगी कि लोकल टू वोकल ये सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस दिखेंगे जो कि जेन्यून है, यूएसडीए दिखेगा, भारत सरकार के बहुत सारे प्रमाणित दिखेंगे, पर आपके आसपास में किसान है जो उगा रहा है, तो आपको वो खुली आंखें रखनी है कि आपके आसपास में किसान भी कब ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती करेगा, जीवामृत या जिसे कहते हैं हम गाय का गोबर जो है, गोबर से खेती वो तब करेगा जब उसे पता है कि भाई आने वाला मेरा कंज्यूमर जो है वो प्राकृतिक खेती मांग रहा है। और आप अगर सतर्क रहेंगे, आप अगर डिमांड करेंगे कि नहीं भाई मुझे नेचुरल चाहिए, मुझे ऑर्गेनिक चाहिए, तो किसान भी उसकी ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, वी वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मन की बात। Experience means, see, already I told you, we got a big surprise. We didn't expect this. When our Prime Minister Modi ji has told about that, after that we got a big energy. See, Puducherry is known for its tourism, Orville Ashram, and so much so forth. So, but your initiative has also, added a feather to Puducherry, I would say. What do you think that, because it is on the bucket list of every Indian and even foreigners, so what is that you look forward to when we go to Puducherry? Yeah, of course. See, that I want to, especially this time, I want to thanks to our PM Modi ji, because the 2 years before Modi ji visited the Pondicherry, that time he tell we want the best Puducherry. Yeah. We are thinking the best means which generally the word of the best, but the meaningful Modi ji that innovated their thing, B for the business hub, E for the education, S for the spiritual, T for the tourism. Wow. Okay. So nowadays, Nice. most probably it's filled it. So that based on that, our organization also, your backers also working that, we are proudly say that. ओके ओके नाइस। शर्मिला जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या वो एक इंस्पिरेशन थी आपकी ज़िंदगी में कि आपको लगा मुझे ये काम करना चाहिए? ओरिजिनली मैं राजस्थान से हूँ, जहाँ किसान बाजरा उगाते हैं, और उसके बाद मेरा पूरा बचपन, स्कूलिंग जो है
अलीबाग के पास एक छोटा सा गांव है पोयनाड। मन की बात में आपने देखा रहेगा प्रधानमंत्री जी ने गांव का जिक्र किया, तो वहां पूरा जैसे किसानों का ही पूरा कोकण जिसे कहते हैं, कोकण पूरा वहाँ खेती पे ही सारा चलता है। तो मैंने ये बहुत बचपन से देखा कि किसानों की समस्याएं, फिर जो महाराष्ट्र में सुसाइड का रेट, आत्महत्या का रेट काफी ज्यादा रहा, तो उस चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मुझे अपनी जिंदगी में, मेरा जन्म कुछ खास वजह से हुआ है और मुझे अपना जीवन जो है किसानों के लिए करना है। पानी की दिक्कत है कि जैसे जो उगाते हैं, हाँ। जैसे मोटा अनाज है, जी। तो मोटा अनाज को ज्यादा नखरे नहीं है, ये बिल्कुल गर्मी में 64 डिग्री में आ जाता है, जी। जिसे कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है, स्मार्ट वाटर। तो एक ऐसा क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है और इसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। तो पिछले 20 साल से मोटे अनाज की खेती, कैपेसिटी बिल्डिंग, किसानों को ट्रेनिंग देना, बीज पे काम करना। अब जो आपने बात की कि ये बीमारियां, हर दूसरे घर में डायबिटीज है, बिल्कुल। इसकी वजह है जो सीड्स है, किसान जो बीज यूज कर रहे हैं वो हाइब्रिड है। तो वो अगर मान लो जो मिलेट भी है तो उसमें जिंक है, अमाइनो एसिड है, आयरन है, हाँ। तो ये मात्रा अगर प्रचुर में रहेगी तो बीमारियां आएगी ही नहीं। बिल्कुल। तो शर्मिला जी, आज आप एक रोल मॉडल हैं हर बच्ची के लिए जो ये सोच रही है कि मैं कुछ समाज के लिए करना चाहती हूँ या मैं बड़े होके कुछ ये बनना चाहती हूँ, पर अब उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। आप अगर सोचते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप खुद राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं, वहां से यहाँ तक का सफर कैसा रहा? मैं इसे कहूंगी कि घूंघट से हार्वर्ड तक का सफर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर। और मैं स्पेशली आज की सारी युवा और महिलाओं को ये बताना चाहूंगी कि डेस्पाइट ऑफ हजारों लाखों रिजेक्शंस, आपको हर कदम पे रिजेक्शन मिलेगा, पर हारना नहीं है। परेड में हमने देखा नारी शक्ति की जो एक बुनियादी थीम रही है, तो उससे जो हौसला है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखिए जिस तरह महिलाओं को उठाया है, जिस तरह सराहा है। अब मैं एक छोटे से गांव के किसी तबके से आई हूं, कोई जानता तक नहीं था हमें, तो प्रधानमंत्री जी जब सराहते हैं तो ये मोटिवेशन जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कहाँ था ये वक्त कभी नहीं था। हम जैसे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं रहेगा कि हम नेशनल पे ऐसे बैठ के इंटरव्यू देंगे या प्रसार भारती हमें इतना रेड कारपेट वेलकम देगा। जिस तरह से हमारा सम्मान हुआ है दिल्ली में, कई जनों ने पहली बार दिल्ली देखा है, कई जनों ने हमने पहली बार परेड देखा है, पहली बार ऐसे समझ में आया कि अरे ये दुनिया क्या है। तो प्रधानमंत्री और प्रसार भारती और दूरदर्शन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें, और एक वुमेन होने के नाते कहूंगी कि ऐसा लग रहा है मायके में आ गए। माता पिता ने भी इतना नहीं किया रहेगा जितना दूरदर्शन ने, प्रसार भारती और प्रधानमंत्री जी ने किया। Thank you, very kind of you, ma'am. So heartwarming. P. Lennon, we would like to know that you have also, to your credit, have 2 world records. I would want you to kindly dwell upon that a little. Yeah, of course. That after the Man Ki Baat, that Honorable Prime Minister honored, na, after that we decide. We want to do something that not for the different manner. We want to do something that across the India want to know. So that time we are both are decide. We can take the 75 boats and 75 fisheries and 75 celebrities and 75 Indian flags. And the 75th of India Independent Day, that day will especially we do and bring the scientific age of plastics. With So 75 it's minutes. a world record. That Okay. time. Nice, yeah. And moreover, at the same time in the Nakshamurt Bharat Abhiyan, the drugs addict. So that Pondicherry wise, not now, that before that some years ago, that more than the drugs will be added the childs, that and all. So that time again we are both are thinking we want to do something the innovative manner. So that have the big beach way. So again that 40 celebrities we will get down and continuously and play the drums against of the drugs. So that the scheme of the Nakshamurt Bharat Abhiyan. So that is also world record. So we are not for the biggest or thinking, this is not also social work. We are thinking this is our home. Yes. We want to give something. So we feel pride. So that after the Man Ki Baat, so many things will be changed in our life. Yes. That's so nice. शर्मिला जी, डिजिटल वुमेन वॉरियर के बारे में आप हमें शो से पहले बता रहे थे, उस बारे में थोड़ा सा और जानकारी दीजिए। जब डिजिटल इंडिया जब भारत सरकार ने लॉन्च किया तब यूपीआई का जन्म पहली बार हुआ, भीम ऐप आया। तो तब प्रधानमंत्री जी ने अपील करा था कि भाई देश की जो व्यवस्था है, आपने देखा मोनेटाइजेशन आया,
तो तब मुझे उस बात ने बड़ा मोटिवेट किया कि महिलाएं यह अगर वो चाहे तो समाज व्यवस्था, पूरे देश की व्यवस्था बदल सकती है। तो डिजिटल वुमेन वॉरियर्स, ये जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसे लॉन्च किया गया, नीति आयोग सपोर्टेड, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया, पार्लियामेंट में मुझे बुलाया गया, और इसमें तब 250 महिलाएं थी। हमने उस भीम ऐप को, यूपीआई को, जैसे ठेले वाले हैं, चाय वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनको ट्रेनिंग किया। फिर सीनियर सिटीजन्स है, महिलाएं, अभी जैसे काफ़ी घरों में कोई हेल्प नहीं है, उबेर बुक करना है, सब्जी लानी है, तो ये हमने पूरे इंडिया में 75 सिटीज़ में शुरू किया। 250 महिलाओं से शुरू होकर अब 1.5 लाख महिलाएं, 30 शहरों में हमारे डीजी बाजार चलते हैं। जिस किसी महिला के पास पैसे नहीं है वो हमें फ़ोन करे, हमसे कनेक्ट करे, उन्हें बिजनेस के लिए पूरा फैसिलिटेट करते हैं। तो एम्पावरिंग वुमेन डिजिटली टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्वालिफिकेशन एक ही है, आपके पेट में आग होनी चाहिए। आपने बताया कि कोई महिला अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप बताना चाहें किस प्रकार वो आपसे जुड़ सकते हैं तो प्लीज। डिजिटल वुमेन वॉरियर्स, यह फेसबुक पे हमारी एक कम्युनिटी है, और डीजी बाजार हमारे इंडिया के सारे शहरों में, टियर 1 टियर 2 शहरों में चलते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हैं। अगर कोई महिला फ़ोन करके कहती है कि मेरे पास सामान नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, लाइन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वहाँ पे हम एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं। आपको ये सारा दिया जाएगा और आप उसके ऊपर आप एक बिजनेस कर सकते हैं। 15,000 से लेके 25,000, 50,000, अब हमारा टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर हो रहा है, जो हमें प्रधानमंत्री जी ने टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट किया है, बहुत सारा सपोर्ट किया है। तो महिलाएं जुड़ सकती है। फेसबुक पे जाइए, डिजिटल वुमेन वॉरियर डालिए, एक पब्लिक कम्युनिटी बनी हुई है, आप उसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, एंड यू आर ऑलमोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। Well, before wrapping up, we would definitely want to know that what impact has mention in Mann Ki Baat had on your venture. Was your backers, the perception of people have changed after you have featured in Mann Ki Baat? Yeah, of course, we can be able to tell. So many changes I already tell you, na. So our team wise already tell you that especially that plastic cleaning team, they have the 200 members. Before that, only for the, I think probably that 70 to 80 members will voluntarily will give. After the Mann Ki Baat, 200 people, then only they added. So many people voluntarily will join your packers. So that is the impact of after the Mann Ki Baat. And moreover, I am happy to say very soon across the India we are going to do your packers wise, every state wise. Already Delhi wise also already started. Oh, that's lovely. So that's how I am telling now. So little bit I am going to the changes every state wise. What is the state wise we are segregate now? What is the problem is that going on? Cannot able to change everything, but each and everything minor point while will be noted, then we can do that kind of the work. Okay. प्रियदर्शनी, सबसे बात करके कितना मोटिवेशन आ रहा है, क्या कहते हो? इनफैक्ट मुझे क्विकली बताना है कि मन की बात के बाद हमारा जो स्टार्टअप है 16 करोड़ का टर्नओवर किया हमने। अब भी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है इस फाइनेंशियल ईयर में, वी आर गोइंग टू टच 100 करोड़ का वैल्यूएशन, ऑल्सो दी टर्नओवर। तो ये मन की बात के बाद हुआ कि मिलेट के जो इनोवेशन प्रोडक्ट, कि लोगों को लगता है मोटा अनाज एक बोरिंग है, तो ये बोरिंग नहीं है। मोदी जी ने जैसे पार्लियामेंट में लॉन्च किया, तो मिलेट का नूडल खाइए, पास्ता खाइए, पिज्जा खाइए, डिमांड करिए कि मिलेट का दीजिए, मिलेट का तो दीजिए, उससे आपके पेट में मोटा अनाज जाएगा, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, डिसीज फ्री वर्ल्ड हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इंस्पायर करने के लिए। इतना अच्छा हमें मोटिवेशन बहुत हुआ है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े, डीडी मॉर्निंग शो में आए। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, मन की बात एक ऐसी पहल रही है जो 108 के करीब इसके हो चुके हैं एपिसोड्स, और इसने सबको ये मोटिवेट किया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें लगता है कि हम एक छोटे से कमरे में रह के समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और साथ ही देखिए ना, सबसे मिलकर इतना इंस्पिरेशन हमें मिला है। कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि हम शायद एक ग्रामीण तबके से बिलोंग करते हैं या छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये आप सब इंस्पिरेशन है कि हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम चलाते हैं, तो उसमें हमें मौका ज़रूर मिल सकता है। तो आइए देखते हैं मन की बात के बारे में और जानते हैं इस पहल के बारे में और कुछ। 2018 में स्कीम आई थी DDU GKY, जहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला थी यहाँ की ट्रेनिंग मिल रही है
तो मैं आया यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की मैंने आईटीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने 7 मंथ की ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद जॉब भी प्रोवाइड किया गया हमें, जो कि चंडीगढ़ में जॉब प्रोवाइड किया गया। 2018 से लेकर आज तक यानी कि 2024 तक मैं काम किए जा रहा हूँ। अभी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जो है हमारी जो चल रही है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये स्कीम निकाली है। जो फार फ्लंग एरिया के जो बच्चे थे उनको जो पीछे रह गए थे, तालीम से कट चुके थे, अब वो इस चीज़ से उभर आए हैं, आगे आ रहे हैं। यानी कि जगह जगह इसके जो इंस्टीट्यूट आए हैं वहाँ पर बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और बच्चों के जो जॉब्स हैं वो भी प्रोवाइड हो रहे हैं और बच्चियाँ भी आगे आ रही हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये स्कीम उन्होंने जो निकाली है फार फ्लंग एरिया बच्चों के लिए, वो आगे आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लाल किले पर देशवासियों को संबोधित करते हुए बोला था कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बोला था। तभी उनसे मैं प्रेरित होकर नदी स्वच्छता का कार्य गत 8 साल से नासिक में कर रहा हूँ। हमारी नदियाँ लोगों ने इतनी गंदी कर दी कि हमारा सब कूड़ा कचरा, फ़ोटो फ्रेम, जो भी पूजा का सामान है लोग नदियों में फेंकते थे। मैं दसरे के दिन नासिक की नंदिनी नदी पे खड़े रह के 17 घंटे खड़ा रह के लोग पूजा का जो निर्माल्य नदी में फेंकते थे उसको जमा करते रहा और हर रोज़ नासिक में गोदावरी के किनारे जाके विसल बजा के लोगों को कचरा फेंकने से मना करता था। उसकी दखल 27 मार्च 2023 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेरे कार्य का देशवासियों को बोला मन की बात में, तो भी से मेरे को इतनी खुशी हुई और नासिक वासियों को भी पता चला कि मैं ये कार्य करता रहा हूँ। और तभी से हमारे नासिक में सब लोग मेरे साथ में जुड़े, बच्चे भी साथ में जुड़े और हम सब मिलकर नदी स्वच्छता करने लगे। हाल ही हमारे प्रधानमंत्री जी अभी नासिक आए थे, उन्होंने गोदावरी का रूप देखा हमारे। अभी गोदावरी पहले जैसी नहीं रही, हमारी गोदावरी अभी स्वच्छ होने लगी। हमारे सब नासिक वासी गोदावरी के लिए कार्य करते हैं, मेरे साथ में युवा जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं। मैं स्कूल में जाके बच्चों के सामने बोलता हूँ कि नदी को स्वच्छ रखना है, अपना कूड़ा कचरा गाड़ी में ही डालना है और अभी बच्चे भी साथ में जुड़ने लगे। मैंने अपने गांव बांसा में अपने ज़िले की पहली कम्युनिटी लाइब्रेरी की शुरुआत की, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यक्रम मन की बात में किया। बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी न सिर्फ हरदोई ज़िले की पहली फ्री कम्युनिटी लाइब्रेरी है, बल्कि साथ ही साथ इसका बड़ा योगदान मेरे गांव एवं आसपास के गांवों में जो छात्र आगे की पढ़ाई के लिए, जिसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या थी, जो अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर आसपास के शहरों में किराए पर रहकर कोचिंग करते थे और जिसका अतिरिक्त भार उनके माता पिता पे आता था। उस माइग्रेशन को रोकने के लिए मैंने गांव में ही एक ऐसे माहौल, एक ऐसे परिवेश की कल्पना की जिसको बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी द्वारा मैंने पूरा किया। आज बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी में 1800 से अधिक मेंबर हैं, जिसमें से 400 से अधिक मेंबर जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो गांव में ही रहकर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको अतिरिक्त भार, जो आर्थिक अतिरिक्त भार उनके माता पिता पर आता था, वो नहीं आता है। मुझे आपको बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि मेरे गांव में ही रहकर करीब 21 बच्चों ने अभी तक अन्य सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पास किए हैं और वहाँ पे गांव में ही रहकर उन्होंने उन सारी नौकरियों को लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी का जिक्र अपने इस कार्यक्रम में किया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने गांव में लाइब्रेरी खोलने की अपनी इच्छा व्यक्त की और हम उन सभी के साथ मिलकर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ की कल्पना कर रहे हैं। तो मन की बात के गेस्ट से हम अभी बात कर रहे थे। हमारे साथ और नए 3 मेहमान जुड़ चुके हैं जिनकी कहानी भी उतनी ही इंस्पायरिंग, उतनी ही मोटिवेशनल है। सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं हमारे पहले अतिथि का। सबसे पहले हमारे साथ हैं श्री गौतम पाल जी। आप सोशल वर्कर हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। आइए मिलकर स्वागत करते हैं स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर तुलिका रानी का। वेरी वार्म वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो। उनके साथ हमारे साथ हैं श्री भीमसेन मुकुंद जी। यू आर द जेल सुप्रिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल ऑफ फतेहगढ़। स्वागत है सर। गौतम पाल जी, आपसे शुरुआत करने की अनुमति चाहेंगे कि सबसे पहले ये बताएं, देखिए दिव्यांगजनों के बारे में वैसे ही जब समाज के परिवेश में बात होती है तो बहुत कुछ बातें उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। हो बहुत रहा होता है, सरकार बहुत कदम उठा रही होती है, पर उन लोगों के पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है। इस बारे में क्या ऐसी स्कीम्स हैं, क्या ऐसी पहल सरकार कर रही है दिव्यांगजनों के लिए जो उनको पता होना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है?
मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को। जी। आप ही के द्वारा जो दिव्यांगजनों को एक सम्मान मिला है जी। 2016 में RPWD जो एक्ट डिसेबिलिटी बिल जिसे हम बोलते हैं जी। उसको लागू किया गया। पहले दिव्यांगजनों की जो कैटेगरी थी वो 7 थी। जी। वो बिल जब लागू हुआ तो उसमें 21 प्रकार के दिव्यांगों को शामिल किया गया और जो दिव्यांग शब्द था वो प्रधानमंत्री जी की ही देन है, जो कि सभी दिव्यांगजनों के लिए एक सम्मान के साथ जो है उसको सभी लोग जो है आज उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। एक सम्मान जो शब्द है वो हमें मिला है। बिल्कुल। और दिव्यांगजनों की योजनाओं की बात यह है कि दिव्यांगजनों की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि दिव्यांगजनों को पता नहीं है। जी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई दिव्यांगजन गाड़ी खरीदता है तो उसको जो है GST माफ है, राइट। उसका जो RTO का रजिस्ट्रेशन है वो माफ है, ओके। उसका गाड़ी का इंश्योरेंस जो है उतने प्रतिशत की छूट है जितना उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र है। अच्छा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में फास्टैग फ्री है। ओके। तो ये हर किसी दिव्यांग का मन करता है कि उसके पास भी खुद का व्हीकल हो, बिल्कुल। वो आत्मनिर्भर बने। जी। तो वो सारी चीजें सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों के लिए है। यदि कोई दिव्यांगजन घर खरीदता है जी। तो उसको स्टाम्प शुल्क में उतने ही प्रतिशत की छूट है जितना उसका हैंडीकैप सर्टिफिकेट है। अच्छा। अच्छा। यदि कोई दिव्यांग अपने घर यही नगर निगम के अंडर में उसका घर आता है तो उसके लिए वाटर टैक्स और जो है जो आपका गृह कर है वो माफ है। ओके। और बहुत सारी स्कीमें जैसे कि कोई दिव्यांग पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसके लिए जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से उसको लाइसेंस जो है फ्री है। अब देखिए आप कितनी बातें बता रहे हैं जो हमें ऐसा लग रहा है हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये दिव्यांगजनों को पता होना बहुत जरूरी है। जी। तो अगर मूविंग ऑन टू डॉक्टर तुलिका रानी, देखिए फर्स्टली मेनी कांग्रेचुलेशन दैट आप एक महिला होके महिला सशक्तिकरण का इतना बड़ा उदाहरण है। आपने माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा लहराया और इसके साथ ही आप 25 माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस का भी हिस्सा रही हैं। आपका ये सफर कैसा रहा और आपने एयरफोर्स से एक माउंटेनियर बनने का ये कैसे शिफ्ट लिया? हाउ वाज दिस जर्नी थ्रू आउट? जी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, क्योंकि महिलाओं की जर्नी जो होती है पहले से ही बहुत स्ट्रगल से भरी रहती है। लेकिन अब हम ये जान रहे हैं कि अपने देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के प्रधान नायक वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन सबका बहुत ध्यान रखते हैं हर वर्ग का। तो उनका आभार कि वो मेरे जैसी प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं। बिल्कुल। फौज में जो हमारी जर्नी रही वो उस समय पे भी लोग कहा करते थे कि महिलाओं के लिए ऐसा क्षेत्र नहीं है, लेकिन अभी हमने देखा कि परेड में जो 75वां गणतंत्र दिवस पर पूरी की पूरी थीम महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत पर आधारित थी। बहुत ही गर्व का विषय हर महिला के लिए, हर सिटीजन के लिए। जिस तरह से उन्होंने G20 में भी प्रधानमंत्री जी की विजन रही विमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाएं ही नेतृत्व करें, वो एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक सोच की गहराई आप देखिए, इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेन। ये उस बात का एक अग्रीमेंट है कि महिलाओं में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है देश के ऊपर। सी बट वाइल ग्रोइंग अप, जब आप बड़ी हो रही थी तब समाज शायद महिला सशक्तिकरण पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था। उस परिवेश में एक बेटी होकर, एक महिला होकर आपने अपने लिए एक अलग राह चुनी। वो आपके अंदर कैसे वो जज्बा आया, कैसे इतनी सोच आई? देखिए, हमें लगता है कि महिलाएं सिर्फ अपने जेंडर की वजह से किसी से कमतर नहीं है। बिल्कुल। महिलाओं में एक क्षमता है। हमारे देश में हमेशा से ही वीरांगनाओं की एक प्रथा रही है। बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते हुए हम सब बड़े हुए हैं। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी मैंने फौज में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी पर्सनैलिटी लीडरशिप रोल के लिए ठीक है, एडवेंचरस रोल के लिए ठीक है। तो फौज में मुझे वह अवसर भी दिया गया। उस टाइम पर फैमिली का क्या सपोर्ट था, क्या उनका व्यूज थे? फैमिली का तो सपोर्ट था, लेकिन सोसाइटी में एक परसेप्शन ऐसा रहता है कि ये महिला प्रधान क्षेत्र नहीं है। वही मानसिकता इस बार 75वें गणतंत्र दिवस पर बदलने की कोशिश बहुत भरपूर तरीके से की गई है, बहुत सशक्त। तो मैंने 2005 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी। 2015 तक 10 वर्ष भारतीय वायुसेना में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत रही। और जब मैंने 2012 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने में सफलता प्राप्त की तो उसके पश्चात मुझे मिलिट्री आउटडोर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में
बतौर भारतीय वायुसेना अकेडमी में पोस्टिंग दी गई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और वहाँ हमारे देश की प्रथम 3 महिला फाइटर पायलट्स को भी हमें ट्रेन करने का मौका मिला आउटडोर मिलिट्री ट्रेनिंग में। इनफैक्ट बड़े गर्व का क्षण मेरे लिए रहा कि जो परेड अभी हुई थी 75वें गणतंत्र दिवस की, उसमें जो भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व कर रही थी स्क्वाड्रन रश्मि ठाकुर, उनकी भी मिलिट्री ट्रेनिंग में हम इंस्ट्रक्टर रहे हैं। इट वाज इंडीड वेरी प्राउड मोमेंट। लेकिन एक ये जो क्षण आया, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये क्षण आज से पहले नहीं आता, सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन की वजह से ये क्षण हमने गणतंत्र दिवस पर देखा। बिल्कुल, थैंक यू। भीमसेन जी, आप एक जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं एक जेल सुप्रिटेंडेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि जेल का जो वर्क है वो सारा एक इनक्लोजर के अंदर होता है। हमारी जेल की क्या गतिविधि है, कैसे हम क्या करते हैं, उसे कोई बाहरी लोग जान ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र आम तौर पर जनता में तो रही, लेकिन एक इनक्लोजर के अंदर, एक 4 दीवारी के अंदर भी पहुंच गई। हम जो काम जेल के अंदर कर रहे थे उसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देखा गया। हम चाहेंगे पहले आप हमारे साथ साझा करें कि मन की बात में आपका जिक्र प्रधानमंत्री ने क्यों किया, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक चौपाई रामचरितमानस की कहना चाहूंगा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो दूसरे की पीड़ा समझना एक सबसे बड़ा धर्म है। और जैसा कि बेजुबान जानवर जो होते हैं, गाय वगैरह, तो हमारे उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण की योजना लागू की गई थी, जिसमें गायों का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये ऐलान किया गया था, अब गायों का वध नहीं होगा, अब गायों को कोई काटेगा नहीं, और एक संरक्षण प्रदान किया गया था। तो उसमें सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, इनक्लोजर बन गए थे, खाने की व्यवस्था हो गई थी, सब हो गया था। लेकिन जब सर्दी का मौसम आया तो सर्दी और ठंड और बरसात से उन्हें दिक्कत होने लगी। तब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक एपिसोड मन की बात में ही देखा था कि बेस्ट फ्रॉम बेस्ट, बेकार की चीजों से काम की चीज बनाना। बिल्कुल। तो जेलों में बहुतायत में जो कैदियों द्वारा कंबल यूज किए जाते हैं वो 3 वर्ष की उम्र के बाद, 3 वर्ष बाद वो कंडम हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उनका कोई यूज नहीं होता। उनका डिस्पोजल भी एक समस्या होती है। तो मैंने उन्हीं कंबलों का रीयूज करके, उनका पैचवर्क करा के, स्टिचिंग करा करके हमने एक कवर तैयार किया, और दाल वगैरह की बोरियां भी आती हैं प्लास्टिक की, उनका यूज किया, और गायों के लिए एक काऊ कोट बनाया था हमने, जो मैंने सारी गौशालाओं को डोनेट कर दिया। उसमें एक पॉलीथीन लगाई गई थी और एक स्टिकर लगा करके वो गौ सेवा का काम जो है मैंने कैदियों के माध्यम से कराया था। और कैदियों को भी बड़ा उसमें इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि एक गलत काम करने के बाद या एक पश्चाताप की जगह तो जेल होती ही है, वहां आकर के हर किसी को भी पश्चाताप होता है, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि मनुष्य पहले मनुष्य होता है, अपराधी वो बाद में बनता है। सोसाइटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय तो उसको सुधारने का है, उसके रिफॉर्म का है। उसे अगर अपनी गलती का एहसास है और वो सुधरता है, सुधरने की गुंजाइश है, तो सबसे पहला काम हमारा उसमें सुधार का होना चाहिए, और वो सुधार का। ये बहुत ही खास बात है, और मैं आपको फिर से मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि हम एक पर्दे से परे एक आदमी को नहीं देख पाते कि वी टेक पीपल ऑन देयर फेस वैल्यू के गलत काम किया है तो भाई ये इसको गलत करार दे दिया जाए। लेकिन इन्होंने एक इंसानियत के नाते सबके बारे में सोच के, पशुओं के बारे में भी सोचा, और एक छोटा लेवल पे काम शुरू किया, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री ने की। आपसे पुनः जानना चाहेंगे गौतम जी के शुरुआत आपके सफर की कहां से हुई। आपने बताया कि आप शुरू से ही दिव्यांग जनों के लिए शिविर लगाना या उनको व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करना, ऐसे कार्यों में कार्यरत रहे हैं। मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं, और बचपन में ही मेरे पैर में पोलियो हुआ जी, और मेरी एजुकेशन जो है सभी के सहयोग से रही है। किसी ने हमें लिफ्ट दी भैंसा बुग्गी पर, किसी ने ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठाया, किसी ने साइकिल पे। तो मैंने जो देखा, जो ग्रामीण परिवेश के जो दिव्यांग हैं जी, उनकी स्थिति, जो शहर के दिव्यांग हैं, चूंकि उनको उन योजनाओं का पता नहीं चल पाता, तो बचपन से ही मैं जब 1995 10th क्लास में पढ़ता था, तो मैं अपने गांव में, आसपास के गांव में जो है शिविर लगवाता था, एल्बो स्टिक, ट्राईसाइकिल, ये सब मैं दिलवाता था। तो मेरे मन में जो है बचपन से ही था कि दिव्यांगों के लिए कुछ करना है।
तो 2014 में जब पहला मन की बात का कार्यक्रम आया 3 अक्टूबर 2014 को, उसके एक हफ्ते पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव दिया था। वो यही सुझाव था कि जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले दिव्यांगजन हैं उनके लिए नगर पालिका, नगर पंचायत में कुछ ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिनको उनका लाभ मिल सके। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी को वो सुझाव अच्छा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी दिव्यांगों के लिए बड़े संवेदनशील हैं और बहुत सोचते हैं उनके बारे में जी। तो उन्होंने फिर उसका जिक्र मन की बात में किया। उन्होंने भी अपना एक एक्सपीरियंस साझा करा कि जब वो गुजरात के सीएम थे, वो अपने यहाँ एशियन गेम कराते थे और उसमें लाखों दिव्यांगजन आते थे, एक विश्वास का वातावरण बनता था। हाँ। उसके बाद में मैंने फिर एक फाउंडेशन बनाई, हर्ष स्पेशली एबल केयर फाउंडेशन। तो मैं उसके माध्यम से जो है काम करने लगा और करते करते जो है मैं लगभग 2-2.5 लाख दिव्यांगजनों तक, जो कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं ईमेल के द्वारा, मैं अभी मुझे कोई फोन करेगा मैं उसको सारी चीजें भेज दूंगा, गाड़ी में कैसे छूट मिलेगी मैं उसको तुरंत डॉक्यूमेंट पूरे प्रोवाइड करा तो दूंगा। क्या आपका कोई ईमेल एड्रेस है या कोई वेबसाइट है, जैसे कोई दिव्यांगजन जो हमें सुन रहे हैं अगर सेवा पाना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहें? हाँ, तो मेरा अपना फेसबुक पे पेज है, मैं ट्विटर पर हूँ गौतम पाल मेरठ के नाम से। तो दिव्यांगजन वहाँ पर सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहता हूँ, उसके माध्यम से उनको जानकारी देता रहता हूँ। और फ़ोन के माध्यम से मुझे व्हाट्सएप पर जो है बहुत सारे दिव्यांगजन यदि फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, मैं उनको तुरंत रिप्लाई करता हूँ और उनको उनका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। तो दिव्यांगजनों से हम कनेक्ट रहते हैं हमेशा। तुलिका रानी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो आज माउंटेनियरिंग से फैसिनेटेड हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एडवेंचरस फील्ड है जो शायद पहले ये रास्ता लड़कियों के लिए नहीं खुला था, लेकिन आप जैसे चीयर लीडर्स ने वो आज संभव कर दिया है। उनके लिए आप क्या ऐसे कुछ प्रेरणा के शब्द बोलना चाहेंगी या क्या रास्ता वो चुने, उनको क्या बताना चाहेंगी? जी, मैं पहले तो अपनी स्वरचित 2 लाइनें यहाँ शेयर करना चाहूँगी। हालातों के आगे झुकना वीरों का परिमाण नहीं, हालातों के आगे झुकना वीरों का परिमाण नहीं, लड़ ना जाए जो आंधी से, दीपक हैं वह प्राण नहीं। अभी हमने हाल ही में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा देखी। प्राण ऐसे होने चाहिए जो देश भर में ऊर्जा भर दें। बिल्कुल। और इसीलिए मैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये मैसेज देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से मुझे मौके मिले, मेरी जर्नी बहुत आसान नहीं थी और किसी भी महिला की माउंटेनियरिंग जैसे क्षेत्र में, एक बहुत ही अनकन्वेंशनल क्षेत्र है, आसान नहीं होगी। मुझे मौका मिला कि मैं उत्तर प्रदेश से पहली महिला बन सकी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली, बहुत ही प्राउड मोमेंट था देश के लिए, मेरे लिए। फिर प्रथम भारतीय महिला बन सकी एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी पर तिरंगा फहराने वाली, जो ईरान में स्थित है। देश विदेश में 25 माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग अभियान कर सकी। और इसीलिए बच्चियों जो कि इसमें क्षेत्र में जाना चाहती हैं, मैं कहूंगी कि आप अपनी प्रतिभा को पहचान कर पहली बात तो कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी मेरिट के दम पर आप सम्मान अर्जित करने की कोशिश कीजिए, परसिस्टेंस रखिए, धैर्य रखें, दृढ़ इच्छा रखें और अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य आगे करते रहें। हमारे देश में इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो कि एक उत्तरकाशी में है निम, और एक दार्जिलिंग में है, एक अरुणाचल प्रदेश में है। इन सब की जानकारी आप मुझसे भी ले सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी है। प्रियदर्शनी, कितनी खूबसूरती से मैम ने बताया ना कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए निरंतरता, धैर्यता होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, डीडी मॉर्निंग शो में अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।